If you are new to the channel, please subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. Hello, good morning everyone. This is Sheen Begum from NGCC Software Technology. In the previous class, we will discuss about enterprise structure in MM. So, we will discuss about the practical session today. जैसे कि लास्ट टाइम अपन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे. एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इज नथिंग बट कंपनी, कंपनी कोड, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेसिंग ग्रुप. दिस ऑल आर द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट. क्योंकि जैसे कि अपन लास्ट टाइम पढ़े थे कंपनी. अ कंपनी इज़ अ टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट. ओके, कंपनी क्या रहेगा? टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट रहेगा. एंड देन जो भी डाटा आप कंपनी में स्टोर करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सारे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स पर एप्लीकेबल हो जाएगा. वेर एज कंपनी कोड इट इज़ अ इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग यूनिट. इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग यूनिट्स which having own clients, own profit and loss account statement, etc. So this is a company code. And plant it is a place where manufacturing activities taken place. मतलब जहाँ पर manufacturing activities क्या होते taken care होंगे. जैसे कि manufacturing activities is nothing but अगर आपको एक if you want to manufacture a finished good, if you want to manufacture a semi finished goods, so ये सारे activities कहाँ पर होंगे? Plant. Then next, storage location. Storage location is nothing but where we store. It is a place where we store our material or product. Material it should be a semi-finished goods या फिर finished goods या फिर raw material, scrap, anything, everything. ठीक है. The next, purchasing organization. Purchasing organization, it is an organization which is responsible for the procurement activities. Procurement activities is nothing but like it is a two part, internal or external. Internal is nothing but like nearby plants and external is nothing but outside vendors जो आप क्या करेंगे? परचेज करेंगे, anything. Purchasing group is nothing but a single buyer or group of buyer who is responsible for day to day activities. मतलब कि single buyer or a group of buyer who is responsible for day to day activities is called as purchasing group. मतलब कि एक पर्टिकुलर बायर हो सकते वो या फिर ग्रुप ऑफ बायर्स हो सकते जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए. ओके, ये हो गया एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीथिंग. ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ प्रैक्टिकल सेशन. फर्स्ट, कंपनी. ओके, कंपनी रियल टाइम में अपन क्रिएट नहीं करेंगे. क्यों क्रिएट नहीं करेंगे? क्योंकि रियल टाइम में जो क्लाइंट रहेंगे वो कंपनी अपने को जस्ट डिटेल्स देंगे, राइट. तो कंपनी इन द रियल टाइम अपन कभी क्रिएट नहीं करेंगे. अगर इनके हिसाब से कोई क्वेश्चन भी करे रियल टाइम में आप लोग कंपनी क्रिएट करें या फिर कंपनी क्रिएट करे क्या आप बोले तो द आंसर इज़ नो. वी वॉन्ट टू क्रिएट द कंपनी. आप लोग कंपनी क्रिएट नहीं करेंगे बिल्कुल भी. ठीक है, तो लेट्स सी कि कंपनी प्रैक्टिकली किस तरीके से क्रिएट करेंगे. ओके, देन लेट्स सी वी विल डू द प्रैक्टिकल सेशन फॉर द कंपनी. ओके, प्रैक्टिकल जैसे कि मैं आपको इस बारे में बोली कि प्रैक्टिकल के लिए अपने को क्या रहेंगे? 2 मेथड्स रहेंगे. मेथड्स क्या क्या रहेंगे? फर्स्ट रहेगा नेविगेशन मेथड. मीन्स जो अपन okay, first navigation method is a path where we go with the steps, and second method is T code method. T code is nothing but transaction code. ओके, जो एक यूनिक आईडी कोड रहेगा और अपन डायरेक्टली वो कोड से वो स्क्रीन पर जा सकते जो भी आप चेक करना चाहेंगे. इट शुड बी अ 4 digits. Okay, let's check out the first. Okay, we will check what is the T code for the company creation. So company creation, the T code is OX15. Okay, let's do the practical.
Okay, first we will go through with the navigation method. So navigation method for the company code is SPRO, enter, IMG screen, then enterprise structure अपन यहाँ पर डिफाइन करें, वी आर क्रिएटिंग, सो definition, financial accounting, define company. Okay, this is a navigation method. Okay, तो अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ओके लेट्स डू विद द टी कोड मेथड. अभी अपन क्या करें, नेविगेशन मेथड से गए थे, अभी अपन टी कोड मेथड यूज़ करेंगे. टी कोड आप कहाँ पर डालेंगे, ये बॉक्स जो दिख रहा है इसको क्या कंसिडर करेंगे आप, कमांड एरिया. ओके, ये कमांड एरिया में आपको क्या करने का है, टी कोड डालना है. जैसे कि कंपनी क्रिएट करने के लिए टी कोड क्या है, OX15, एंटर. ओके, तो क्लिक ऑन न्यू एंट्री. ओके, कंपनी NI01. Okay, Nike Foundation. Okay, I'm giving the Nike Foundation as a company name and the company it NI01. जो कंपनी का नेम अपन जो लिखेंगे, इट शुड बी अ यूनिक ID, इट मे बी अल्फा और न्यूमेरिक. अभी यहाँ पर मैं इसको क्या करूँ, जस्ट कंपनी और कंपनी नेम डालकर इसको सेव कर दें. तो यहाँ पर आप देखिए, जब अपन सेव करेंगे तो आपको क्या शो कर रहा, एरर शो कर रहा. दैट मीन्स कि कंट्री डालना आपको क्या है, कंपलसरी है. तो अभी मैं यहाँ पर IN डालकर एंटर कर रही हूँ. तो देखिए ये क्या हो गया, सेव हो गया. सो व्हाट इज द मैसेज हियर, डाटा वॉज सेव्ड. ओके, सो दिस इज अ प्रोसेस टू क्रिएटिंग द कंपनी. ओके, so this is a process of creating the company. So next we will see how to create the company code. Okay, कंपनी कोड क्रिएट करने के लिए भी सेम आपको यहाँ पर नेविगेशन मेथड भी रहेगा, टी कोड मेथड रहेगा. तो इसका टी कोड रहेगा OX02. ओके, दिस इज़ अ टी कोड. ओके, मैं यहाँ पर टी कोड इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि टी कोड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रियल टाइम में, आपको टी कोड्स याद करने का रहेगा. तो लेट्स सी. ओके, ओके, तो देन कंपनी कोड क्रिएट करने के लिए फर्स्ट अपन नेविगेशन मेथड चेक करेंगे. SPRO, एंटर, IMG स्क्रीन, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड. ओके, दैट मीन्स कि आप कंपनी कोड में कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर कंपनी कोड चेक कर सकते हैं. ओके, तो इस पर आप क्या करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे एंड देन डबल क्लिक ऑन एडिट कंपनी कोड डाटा. ओके, तो यहाँ पर देखिए चेंज व्यू कंपनी कोड बोलकर आ गया. तो सेम ये प्रोसेस करने से बेटर आप क्या कर सकते, अभी जस्ट मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, एक टी कोड यूज़ कर रही हूँ. टी कोड क्या है, OX02, देन एंटर. सी कंपनी कोड बोलकर आ गया. ओके, देन नेक्स्ट दिस इज़ अ टी कोड मेथड एंड वो जो अभी अपन पहले कर रहे थे वो नेविगेशन मेथड था, कि मतलब कि जो स्टेप से फॉलो कर सकते हैं आप या फिर टी कोड यूज़ कर सकते. ओके, तो क्लिक ऑन न्यू एंट्री, न्यू क्रिएट करें. जैसे कि कंपनी कोड शुड भी, जैसे कि मैं यहाँ पर दी थी NI01 एंड कंपनी कोड नाइक फाउंडेशन. ओके, जैसे कि लास्ट टाइम अपन चेक कर रहे थे कि यहाँ पर जस्ट नेम और कंपनी कोड में ही था, ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं था. ये ऑप्शन मीन्स जब तक आप ये जो भी फिल यहाँ पर जो डिटेल है, जब तक आप उसको फिल नहीं करेंगे, जब तक क्या है वो डाटा सेफ नहीं होगा. जैसे कि मैं अभी यहाँ पर वहाँ पर कुछ नहीं डालकर कंट्रोल S कर दे रही, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है आपको, फिल इन द ऑल रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड्स. ये आपको क्या रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा, मतलब कि कंपलसरी आप जब तक वो फिल नहीं करे जब तक आप वो सेफ नहीं कर सकते. जैसे कि करेंसी क्या रहेगा अपना INR. अब मैं INR डालकर जब सेव करूँगी तो यहाँ पर क्या शो हो गया, अपने को एडिट एड्रेस बोलकर आ गया. तो यहाँ पर ये जो सारे डिटेल्स है ना, ये आपको क्लाइंट्स देंगे, तो क्लाइंट्स के बेस पे आपको ये सारे डिटेल्स डालना रहेंगे. तो अभी जस्ट नॉर्मली अपन यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, कंट्री क्या है अपना IN एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन एंड देन एंटर.
तो data was saved. So this is a process of creating company and then company code. Okay, next we will see how to create a plant. For creating plant, the T code is OX10. Okay, this is a T code for creating the plant. Okay, पहले अपन just check करेंगे कि हाँ navigation method and then we will see the T code method. Okay, first the path is SPRO, enter SPIMG, enterprise structure, definition, logistic general, डिफाइन कॉपी चेक प्लांट बोलकर यहाँ पर है, देखिए। तो इस पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डबल क्लिक ऑन डिफाइन प्लांट। ओके, सो दिस इज अ नेविगेशन मेथड। ओके, अभी अपन एक बार चेक करेंगे द टी कोड मेथड। सो द टी कोड मेथड इज OX, the T code for the plant is OX10, enter। सी प्लांट बोलकर आ गया यहाँ पर। सो दिस इज अ टाइटल बार। ओके, यहाँ पर अभी अपने को न्यू क्रिएट करना है, तो क्लिक ऑन न्यू एंट्री। प्लांट शुड बी अ यूनिक ID, यूनिक कोड, इट मे बी अ 4 digits। अब जैसे कि मैं यहाँ पर NI02, ओके, आई एम गिविंग द प्लांट नेम इज़ NI02, जैसे कि अपना कंपनी नेम क्या था NI01। तो यहाँ पर अभी अपन प्लांट नेम क्या देंगे, NI02। ओके, प्लांट नेम प्लांट हैदराबाद, प्लांट हैदराबाद 1। ओके, हैदराबाद के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक प्लांट क्रिएट कर रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से आप बहुत सारे प्लांट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, सेम यही प्रोसेस रहेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसको सेव कर रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए एडिट एड्रेस का बॉक्स आ गया। सेम यहाँ भी अपने को ये सारे डिटेल्स क्लाइंट के थ्रू रहेंगे, तो वो डिटेल्स शो डालेंगे आप। तो अभी यहाँ वो डिटेल्स आप सारे क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो अभी यहाँ पर कंट्री अपने को डालना कंपलसरी है, तो कंट्री क्या रहेगा, IN डालने के बाद आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन एंड देन क्लिक ऑन एंटर। सो डाटा वाज सेव्ड। ओके, so this is a process of creating the company code and plant. Okay, this is enough for that today's session. We will continue in the next session. Okay, in the next session we will discuss about storage location, purchasing organization and purchasing group. Okay, अभी अपन नेक्स्ट सेशन में स्टोरेज लोकेशन किस तरीके से प्रैक्टिकल करेंगे वो चेक करेंगे, किस तरीके से आप लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं एंड देन किस तरीके से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।